सेट अप जो ये कहते हैं वो बुरी तरह नाकाम हुआ है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है टेररिज्म का रास्ता रोकने से, और रोज टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है जिसको नहीं रोक रहे। उनको सिर्फ ये पड़ी है एस्टेब्लिशमेंट को कि हम किसी न किसी तरह से अदलिया को तबाह व बर्बाद कर दें और वकला के मामलात में इंटरफेयर करके वकला को गैर इनफेक्टिव बनाएं, और इसीलिए ये जो आज टेररिज्म का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है उसमें कचहरी के बाद ये होना ये साबित करता है कि मौजूदा सेटअप ने बिल्कुल नाकाम हो चुका है, और वो ना सिर्फ नाकाम होगा बल्कि वो आइन को, अदलिया को और तमाम और आइनी ज़रूरियात को जो है वो उसने ख़त्म बर्बाद कर दिया है। और इसके बाद मैं मुनीर मलिक साहब जो हमारे एक्शन कमेटी के हेड हैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि 27वीं तरमीम के बारे में बात करेंगे। आज बदकिस्मती से उस दिन जिस दिन इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और लोग दुआए मग़फ़िरत मांगेंगे जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं, तो ये 27वीं तरमीम के मौके पर भी आइन के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगनी पड़ती है। मुल्क की बेशतर वकला ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है 27वीं तरमीम को रिजेक्ट करती है, जिस तरह से उसने 26वीं तरमीम को रिजेक्ट किया। इसको हम कभी नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जो लोग आज इस 26वीं और 27वीं तरमीम के दावेदार हैं वो ही सबसे पहले जो है इसके असरात उन पर आएंगे। आप मेरी बात लिख के रखिएगा। हम वकला बरादरी से अपील करते हैं कि आप अपने आप को मोबिलाइज़ करें, जिस फॉर्म में कर सकते हैं मोबिलाइज़ करें। 27वीं आइनी तरमीम और 26वीं आइनी तरमीम को रजिस्ट करें। इस मौके पर हम एक्शन कमेटी की जानिब से एक कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं जो आबिद ज़ुबैरी साहब आपके सामने पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया आपका, पहले तो मैं मज़म्मत करता हूँ जो आज दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है कचहरी में, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन शहीदों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। जो ये एक रेजोल्यूशन है जो पास की है, प्रेस रिलीज। वी द लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट एंड डिनाउंस द सो कॉल्ड 27th amendment in the strongest possible terms. This amendment is nothing short of unconstitutional assault, an attempt by a parliament devoid of legitimacy, moral and legal authority to mutilate the very foundation of the 1973 constitution. This brazen attack targets the core pillars that hold the republic together: separation of powers, independence of judiciary, democracy and rule of law, civilian supremacy. The so-called 26th and 27th amendments are not reforms, they are demolition of constitutionalism. They represent a systematic effort to destroy the judiciary, cripple democratic governments and place Pakistan under unchecked executive military domination. Let it be stated without ambiguity that there is no room for any federal constitutional court in the presence of Supreme Court of Pakistan. Any person who agrees as on such an inherently unconstitutional body stands against the constitution, against the judiciary, against the people of Pakistan. Such a person will be remembered as a collaborator in the subversion of the constitutional order. We categorically reject the 26th and 27th amendments, particularly the following. The proposed federal constitution is an illegal creation designed to hijack constitutional interpretation and neutralize judicial independence. We call upon every Pakistan to boycott this so-called court and refuse to legitimize it with their appearance. The immunity granted President commanders of the armed forces is in violation of both the Constitution and clear injunction of Islam that no one is above the law. No individual, civilian or military, can place himself above the law. This amendment attempts to create imperious authorities, which is tyranny and constitutionalism. The distorted new Article 42 throws the command structure of armed forces into confusion, introducing
perilous ambiguity into national security and civilian military relations. These amendments are a direct attack on Pakistan. Constitutional identity must be resisted with full democratic force. We call upon lawyers, civil society, media and every citizen who believes in the rule of law to rise and join a decisive nationwide movement to restore the Constitution and protect the independence of judiciary. Thank you. इसके खिलाफ सर आपका कोई लाएअमल कोई एहतजाज का है, कैसे रजिस्ट करेंगे, या आपने कोई आगे का लाएअमल अभी नहीं बताया? मुनीर साहब इंशाल्लाह अनकरीब एक्शन कमेटी, नेशनल एक्शन कमेटी ऑफ लॉयर्स को बुलाएंगे और वहाँ पर लाएअमल तय होगा। बार काउंसिल की जानिब से अभी तक इस पर खामोशी है, इस तकरीब पर मुकम्मल, तो क्या इससे ये समझा जाए कि ओवरऑल जो मुल्की पार्टीज है उनकी जानिब से इसको एक्नॉलेज कर लिया गया? इस वक्त अभी तो इलेक्शन हुए हैं और अभी फॉर्मेशन नहीं हुई है बार काउंसिल्स की, तो इस स्टेज पर हम कोई गवर्नमेंट नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है कि जब फॉर्मेशन हो जाएगी वो कभी भी 26वीं 27वीं तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे कोई, बल्कि वकला उनको ये नहीं करने देंगे। और अब भी जो ज़्यादातर वकला जो कामयाब हुए हैं प्रोविंशियल बार काउंसिल में, वो 26वीं और 27वीं तरमीम की मुखालफत की वजह से हुए। क्या 27वीं तरमीम को आप नई आईनी अदालत के सामने चैलेंज भी करेंगे? ये आईनी अदालत को तो हम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये तो एक इलिजिटिमेट अदालत है। इसका मकसद सिर्फ ये, जिसको हम सही माने में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मानते हैं, एपेक्स कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम इसी को मानते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। और जो भी ये बनाएंगे इस नाम की, हम समझते हैं वो बिल्कुल इलिजिटिमेट है और ना ही उसके सामने मैं समझता हूँ और उसके सामने पेश होना मुनासिब होगा। तो जब आप इसके सामने पेश नहीं होंगे, चैलेंज भी नहीं करेंगे, तो एक तरह से फिर ये कानूनी जो रास्ता है इस तरमीम के खिलाफ वो तो फिर बंद हो गया। देखिए, ये कानूनी रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने निकालना, इनके पास ऑलरेडी पेंडिंग है। हम तवक्को करते हैं कि जो केस सुना जा रहा था पहले 26वीं तरमीम के खिलाफ, उसको ये अभी तक अपने पास रखेंगे और सुनाएंगे। अगर ये केस उन्होंने इस मसनूई अदालत को भेजा तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट अपनी खुदकशी कर देगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला के खतूत भी सामने आए हैं, आपको लगता है कि इस पे जजेस साहिबान और भी रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या इसी में भी आपको नजर आ रहे हैं? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा जज साहिबान से, लेकिन उनके ये जो कंसर्न शो किए हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम तवक्को रखते हैं कि और जज साहिबान भी दोनों खतूत के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।